All right, ladies and gentlemen, welcome to yet another episode of the Ashish David Show. And all the people who are watching you right now want to know who is this wonderful lady with such a gorgeous smile and Oh, thank you. such a sweet screen presence. My name. Okay. So I am Pooja Sagar. Pooja Sagar. I That's a beautiful am, yes. name. Thank you so very much, Ashish. And it was, first of all, I would like to start from here that I'm really happy to be a part of your show. And the day I saw that post you posted in Facebook, I don't know about any other people, but I was very happy to see that because as you were talking about this lockdown thing, honestly, हाँ अभी because work from home चल रहा है तो everybody is like occupied हो गए काम से, घर के काम से, ऑफिस के काम से, तो people are actually getting confused with work from home और work for home के लिए. तो ऐसी situation में seeing your I like that. post, I like that. People are confused between work from home या work for home. For भी exactly हो रहा है, from भी हो रहा है, ये हो क्या रहा है? Yes. exactly Please तो यही continue. हो रहा है. ऐसे में आपका वो पोस्ट देखना मेरे लिए इट वाज लाइक अरे यार एटलीस्ट कुछ तो नया होगा कुछ समथिंग डिफरेंट एटलीस्ट दिस गाय इज इनिशिएटिंग आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड आई थिंक इट Yay. वाज midnight I saw that and I thought of responding to you कि चलो ठीक है I am really interested for this करके तो Okay. yeah thank you very much for giving me this opportunity एंड हाँ जैसे मैंने बताया पूजा सागर और मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ बट माई रूट्स आर फ्रॉम ओडिशा तो माई Okay. मदर टंग इज ओडिया बट पली बड़ी झारखंड में हूँ और जॉब मैंने करा है कोलकाता में 4.5 साल और उसके बाद आई मूव टू चेन्नई करीबन 3.5 साल और अभी मैं पुणे के लिए काम कर रही हूँ पुणे लोकेशन के लिए सो करंटली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एज आई सेड तो So you're in Pune right now. no, I am looking after Pune location, but currently I am at my hometown, that is Jamshedpur, Jharkhand. How did you get to know about the Ashish David show and कैसे हुआ ये सब कुछ? I saw your post and I was keep on looking to मैं देखती रहती थी notification if any opportunities are coming and which is feasible for me so that मैं करूँ तो वहाँ पे when I got to know about you थोड़ा सा मैं जाके आपको क्या stalking किया आपके page पे जाके I checked out all your previous shows and everything so that kind of I found it very enthusiastic and like बहुत powerful लग रहा था मुझे कि अरे this is not going to be like something बस हल्का वल्का नहीं लगेगा पीपल विल एक्चुअली एंजॉय वाचिंग योर शो सो वो एक एनर्जी लेवल सारे वीडियोस का वो मुझे मेंटेन लग रहा था तो आई वाज फाइंडिंग इट वेरी energetic I would say so Okay. that's how I came to know about you and personally I'm talking about you and then I saw your post then I checked your videos and like इनको एक बार अप्रोच कर सकते हैं What does Pooja do and what are you most passionate about? करंटली मैं एक एमएनसी में जॉब करती हूँ एज अ पीएमओ लीड और इसके पहले जब मैंने जैसे बताया कि पुणे लोकेशन को मैं हैंडल करती हूँ बट एट द सेम टाइम मैं थिएटर भी करती हूँ सो कुछ सालों से लाइक 2-3 सालों से आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद इट Okay. क्योंकि डिस्टेंस की वजह से और उसके पहले से मैं बचपन से ही थिएटर का शौक रखती हूँ जैसे मैंने पहले बताया और मेरे जो डैड है वो थिएटर डायरेक्टर है Oh जमशेदपुर wow. में Yeah, so he basically teaches theatre acting and mass communication in one of the colleges here in Jamshedpur. So his name is Shivlal Sagar. And Okay. तो इंस्पिरेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी मुझे कहीं और से हाँ ये जो एक्टिंग फैक्टर जो था मुझे कहीं टीवी देख के या सीरियल देख के आई वाज नॉट गेटिंग मतलब उसको देख के मैं इंस्पायर्ड नहीं हो रही थी तो बहुत छोटे एज से ही मैंने उनके ड्रामे को देखा है या 96 में फर्स्ट टाइम आई हैड माय शो थिएटर परफॉर्मेंस दैट वाज इन ऑल इंडिया कंपटीशन बहुत छोटी थी मैं और वहां पे मुझे बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था तो दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड तो वहां से वो एक किक स्टार्ट हो गया कि आई थिंक आई काइंड ऑफ लव दिस थिएटर एक्टिंग Okay. and I started assisting my dad with in terms of the direction or backstage work stuff like that even on stage also तो उसके बाद मतलब like how did you get into it? What was happening? How was your school life? Tell us about all that stuff also. श्योर सो जब तक स्कूल में थी तब तक तो मैंने ऑब्वियसली पापा के अंडर में ही ड्रामा किया जब तक मैं कॉलेज पहुंची वहां भी आई यूज्ड टू वर्क अंडर हिम बट मोस्टली अंडर माय डैड्स डायरेक्शन और Okay. कभी कभी मैं डैड के फ्रेंड्स के अंडर भी मैंने काम किया था लेकिन Okay. ऐसा था कि मेरा जो स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था जो Correct. कि मेरी सिटी में था
राइट। करेक्ट। तो इस तरह कॉलेज हुआ और वो मतलब जो एक जो आग होती थी ना थिएटर एक्टिंग करने की, तो हाँ। वो कभी भी टायर्ड नहीं होती थी मैं, चाहे वो मैं कॉलेज जाती थी, उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब जाती थी या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एंड ऑफ द डे वो किसी भी हालत में मैं रहूं, वो थिएटर हॉल पे आई मीन रिहर्सल हॉल पे पहुंच जाती थी। देन वी यूज्ड टू डू रिहर्सल्स फॉर लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स। तो वहां भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। वी वर सो डेडिकेटेड। वो यंग एज की बात है, लाइक करेक्ट। बहुत यंग एज की बात है। हाँ, तो अभी स्लोली ग्रेजुअली ये होता जा रहा है कि लोग बिजी होते जा रहे हैं अपने अपने कामों में। बट देन आई हैव सीन हिम एज द इंस्पिरेशन, एज आई सेड। सो वो लेवल उनको देख के फिर मुझे लगता है कि ही कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट। सो उन्होंने जॉब नहीं करा है, उन्होंने पूरा जीवन अपना थिएटर को समर्पित किया है। You were going to theater and you were doing, and then फिर आपका I think work start हो गया, थोड़ा सा theater took a back seat. हाँ, तो जब मैं चेन्नई मूव की तो डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो गया, काफ़ी दूरियाँ बढ़ गई। तो मेरे लिए वो मुश्किल होता गया। कुछ टाइम तक तो मैंने ऑफ़िस का काम किया और फॉर्च्यूनेटली आई वाज़ वर्किंग विथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आई स्टिल थिंक आई वाज़ रियली फॉर्च्यूनेट दैट टाइम। तो Wow. उससे क्या होता है, यू वर्किंग अंडर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ यू आल्सो प्ले द आई मीन प्रोफाइल जो आपका होता है वो काइंड ऑफ ट्रेनर का होता है। Of course. तो वेयर यू तो वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ट्रेनिंग कंटेंट्स बनाने का, उसमें वॉइस देने का और Oh, आईवीआरस lovely. वगैरह में वॉइस देने का। तो मेरे लिए व्हेन इट ऑल स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, जब लोगों ने बोला कि अच्छा ये करना है, इसके लिए रिसोर्स कहाँ से लेना है, लाइक आई एम देयर, मैं कर सकती हूँ करके प्रोएक्टिवनेस वहां से शुरू हुई। मैं स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार ये तो इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए मुझे वहां जाके थिएटर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट जो अवेलेबल है उसको क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। तो आई स्टार्टेड टेकिंग आउट लाइक छोटी छोटी ऑफर्स को मैंने लेना शुरू कर दी वहां पे विद इन ऑफिस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिर वहां से वो शुरू होने के बाद मैं समझने लगी कि ठीक है, दिस इज एक्चुअली गोइंग गुड नाउ, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। और फिर मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखना शुरू किए और फिर उनको मैं बोलती थी, रिकॉर्ड करती थी। Oh, तो उस wow. तरह से फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। So you तो were a script writer and a voiceover actor and a theater actor. राइट। तो वो धीरे धीरे होता गया क्योंकि आई वाज नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे मैं जाके परफॉर्म करूँ, क्योंकि सिटी वाज वेरी मच न्यू फॉर मी और Hmm. लोगों को मैं जानती नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट चेन्नई सिटी। तो Hmm. धीरे धीरे जब लोगों को जानने लगी और फ्रेंड्स बनने लगे, तब उन्होंने ही फिर मुझे मतलब अप्रोच करना शुरू किया कि पूजा, आई थिंक यू कैन ट्राई, एटलीस्ट यू ट्राई राइटिंग इट। तो मैं बहुत अच्छा कुछ नहीं लिखती क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लिखूं जो कि वर्थ इट हो, जो देखने वाले कहे कि ठीक है, दिस इज नॉट लाइक एनी रैंडम स्क्रिप्ट और वीडियो। तो Yes. पापा से फोन करके आइडिया लेती थी कि पापा मैं सोच रही हूँ इस टॉपिक पे लिखूं या उस टॉपिक पे, तो ही यूज्ड टू गाइड मी फ्रॉम देयर रिमोटली। तो इस तरह मैंने वीडियो बनाने शुरू किए। कुछ वीडियोस को मैंने फेसबुक पे डाला, वहां से कुछ चेन्नई में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने मुझे अप्रोच करा उनका शो होस्ट करने के लिए। सो चीजें बदलती गई ऑटोमेटिकली। Whoa! Dude, I have to clap, man. Okay, so her name is Saili Sarwarkar, okay? She's an arranger, music arranger for Bollywood. And Okay. you know, she was actually telling me that Ashish अभी ना मैं एक टाइप का काम कर रही हूँ, मतलब it's nice, but I want to actually do background score for something. So she's doing something, but she wants to do something else. एंड कभी कभी क्या होता है ना इन प्रोफेशन, सब जैसे कुछ पैशन है पर उसको प्रोफेशन बनाना है, तो अपना जो तो आपको अच्छा लगता है ना वो थोड़ा सा साइड में करना होता है, जो मार्केट में चाहिए वो करना पड़ता है, यू नो, लाइक आई एम श्योर यू ऑल्सो अंडरस्टैंड. सो आई वॉज एक्चुअली टेलिंग हर एग्जैक्टली वॉट यू हैव टोल्ड मी. आई वॉज टेलिंग हर कि अगर आप थोड़ा सा अपना जो पैशन है उसको वीकेंड पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करके कुछ ऐसा सैंपल बना के अपना यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जस्ट एज अ देखो मैं ये भी करती हूँ या देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो that can somehow lead you to a new opportunity where maybe जो आपको करना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा और जो आप करना चाहते हो शायद वो भी आप कर सकते हो. सो वही मैंने अपने वीडियोस डाले फेसबुक पे, फिर कुछ लोगों ने वहां से देखा, मुझे अप्रोच करा कि पूजा एवरी ईयर हमारा एक प्रोग्राम होता है एंड एवरी ईयर मैं होस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम होस्ट करो. सो देयर वाज दिस अंकल कॉल सत्यनारायण, आई कॉल हिम अंकल बिकॉज पापा के. तो
सो उनके अंडर में फिर मैंने एक शो होस्ट किया चेन्नई में, और फिर बैक टू बैक 6 महीने के बाद एक और शो हुआ उनका। एंड देन नॉट ऐसा हुआ कि लोगों के कहने पे फिर से उनको मुझे ही लेना पड़ा। सो ऐसा था कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दे वर लाइक कि दिस टाइम कैन वी हैव पूजा अगेन ऑन आवर शो। सो देन अगेन दे अप्रोच्ड मी फ्रॉम देयर। मेरा जब ट्रांसफर पुणे हो रहा था, तो अगेन मैंने कुछ नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली होता गया कि कोई एक किसी एक बंदे ने देखा कि चेन्नई में किस तरह का प्रोग्राम होता था, देन पुणे वालों ने फोन करके बोला वी सॉ योर शो, हाउ यू होस्टेड एंड वी वुड रियली वांट यू टू होस्ट शो इन पुणे आल्सो। तो इसके पहले कि मैं पुणे ट्रांसफर ली थी, मेरा वो अरेंजमेंट पहले हो चुका था। तो इस तरह फिर पुणे जब गई, पुणे में भी मैंने कुछ शोज होस्ट किए। और रही बात मेरे वॉइस डबिंग की, तो मेरे पापा, बिकॉज ऑलरेडी ही इज इनटू थिएटर्स, आई टोल्ड यू, तो ही गॉट फ्रेंड्स जो कि दे डू वॉइस रिकॉर्डिंग स्टफ। तो उनके लिए कभी मैं जाके उनके प्रोजेक्ट्स के लिए वॉइस दे देती थी, या उनके रेडियो ड्रामा के लिए वॉइस देती थी। तो इस तरह मैंने बीच में एक चीज और मैं भूल गई बताना कि इस बीच में मुझे ऑल इंडिया रेडियो में एक शो होस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। Wow, एंड man, I'm so impressed. I'm so impressed. पूजा, क्या यार, तुम्हें देख के ना अभी लोग क्या है ना अपना जॉब छोड़ने वाले हैं, and they'll be like, बाहर में गया पैंडेमिक, बाहर में गया मेरा जॉब। I find Pooja's story so inspirational because कहाँ से कहाँ पे, मतलब लगा लो आप, पापा से थिएटर करते करते शी इज नाउ रीच्ड ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, दैट्स बिग। थैंक यू वेरी मच आशीष। तो इस तरह सीखने का मौका मिला। सो दैट ऑल इंडिया रेडियो उस समय हुआ जब मैं कोलकाता में थी, और मैं मैनेज करती थी कि वीकेंड्स पे आके वॉइस अपना दे दूं, और फिर वो हर वीकेंड्स पे दे यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट दैट शो। तो वहां पे मैंने बिग शॉट्स का इंटरव्यू लिया, जहां पे मैं मुझे आइडिया नहीं था इसके पहले, बिकॉज थिएटर एक्टिंग में किस तरह डायलॉग डिलीवरी करनी है उसका मुझे अंदाजा था कुछ हद तक। आई विल नॉट से दैट आई एम वेल पॉलिश्ड इन दैट, क्योंकि लर्निंग फेज ही है ये पूरा लाइफ, हमेशा आप चीजों को सीखते ही रहते हो। So लेकिन important, इट so वाज true. डिफरेंट देन यू डू इन रेडियो, यू नो इट वेरी वेल, राइट। सो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और बहुत डिफरेंसेस समझ में आए मुझे कि इट इज नॉट सेम, जो थिएटर है वो रेडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पे प्रोड्यूसर जो थे, उनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला था। और सो उसको मैंने कहीं जाने नहीं दिया था, वो एक्सपीरियंस को मैंने अपने अंदर रखा, और मैंने कहा कि इसको तो मैं आगे यूज जरूर करने वाली हूँ। तो इस तरह किसी तरह से कोई फ्रेंड मिल गया, कोई जिन्हें अपने वीडियोस के लिए वॉइस ओवर चाहिए, तो उनके लिए मैं हेल्प कर देती थी। तो आई यूज टू लव इट, आई नेवर यूज टू लुक फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट और मॉनिटरी स्टफ, क्योंकि मुझे मिलता था, मुझे लगता था कि दिस इज समथिंग आई वुड एंजॉय डूइंग इट, वर्थ इट, देन मैं खुशी खुशी कर लेती थी। तो मुझे वो करने में बड़ा मजा आता था। एट द सेम टाइम क्योंकि जॉब ही चल रहा था मेरा, तो मेरे लिए आई नॉट से बहुत लोगों को मुश्किलें होती है, बट मैंने एंजॉय ही किया ऑनेस्टली। तो जॉब के टाइम पे जॉब भी करा है, एट द सेम टाइम मैंने इसको भी टाइम दिया है। लोग बोलते हैं यस कि ना तुम हमारी खाट ही खड़ी करते रहते हो, तुम हमें बस डांटते ही रहते हो और तुम ड्रैगन फायर करते रहते हो, बट दिस इज नॉट ट्रू। सी, आई टेल यू व्हाट, when it comes to any art, okay, so I sing, I play the bass guitar, I am a radio jockey, I do voiceovers, I'm a sound engineer and I play the bass guitar. इतनी सारी चीजें मैं प्रोफेशनली करता हूँ, ये मजाक नहीं करता मैं। सो द थिंग इज, आई ऑलवेज टेल पीपल, बिफोर परफेक्शन कम्स प्रैक्टिस एंड बिफोर प्रैक्टिस कम्स पैशन। तो जो आपके अंदर आग है ना कुछ करने का, बहुत सारे लोगों में पूजा आग है। So they join a lot of Facebook groups and they intern and all that stuff and they want to know more about it. They watch YouTube videos. ये बहुत अच्छी बात है। पैशन जो है वो आग है ना, जो उस आग पे ही अपनी लाइफ की आप हांडी रखते हो, you know? अगर वो आग नहीं होगा तो हांडी रखोगे, आग नहीं है, कुछ पकने वाला नहीं है। बट पैशन के बाद आता है प्रैक्टिस। पैशन के बाद क्या आता है? पैशन के बाद आता है प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, हाउ द हेल विल यू गेट परफेक्ट? और जब आप पैशन के साथ प्रैक्टिस करते हो, अगर सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ पैशन रहेगा तो फर्क नहीं पड़ना, बट पैशन के साथ प्रैक्टिस करोगे ना आप, तब क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग नोटिस करेंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गेट दो स्किल्स टू पुट इट ऑन वीडियो और पुट इट इन सम वेबसाइट और पुट इट ऑन सम सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेरेवर। और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे 4 दोस्तों को ही शेयर कर दो, उतनी तो मेहनत कर लो। लोग क्या चाहते हैं ना, पैशन है, अब बस मैं सुपरस्टार बन जाऊं। ऐसा नहीं होता।
So, small opportunities lead to bigger opportunities, and those opportunities lead to bigger opportunities. और हर चीज में टाइम लगता है. So, पूजा is a perfect example of that. इसीलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ. पूजा से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं उससे पहली बार बात कर रहा हूँ. वो मेरी अंकल की चाची की फ्रेंड नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. आई जस्ट लाइक हर स्टोरी, दैट्स द ओनली रीजन आई एम अप्रिशिएटिंग हर. गो ऑन पूजा, टेल अस मोर अबाउट योर लाइफ जर्नी. उसके बाद क्या हुआ लाइफ में? सो यही चलता आ रहा है अब तक, और अभी तो मैं घर पे ही बैठी थी काफी टाइम से बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम स्टफ. तो जहाँ पे यू डोंट गेट टू रियली वर्क फॉर 9.5 hours और 8 hours, जो भी आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है, आप उतने टाइम के लिए नहीं काम करते हो. आप काम करते हो थोड़े लंबे टाइम के लिए, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे. सो इफ माई बॉसेस आर वाचिंग दिस, आई स्टिल लव यू एंड आई कैन इवन वर्क ऑन वीकेंड्स. डोंट वरी, नॉट अ कंप्लेंट. तो उसी तरह काम चल रहा है, और इस बीच में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं करती हूँ. मैंने एक चीज सीखा है अपने पापा से, जो वो कहते हैं हमेशा कि एक डिफरेंस होना चाहिए एक कीड़े में और एक इंसान में. सो हम नहीं जानते हैं तो हम लाइफ नहीं जी सकते. नहीं, एक बार फिर से बोलो, मुझे बहुत हंसी आ गई थी, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो. एक डिफरेंस होना चाहिए एक बंदे को वो डिफरेंस पता होना चाहिए, एक कीड़े में और इंसान में क्या फर्क होता है. तो बहुत से लोगों को ये फर्क नहीं पता है. वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं. द सेम थिंग इज बीन डन बाय अ कीड़ा ऑल्सो. वो ऑफिस नहीं जाता है, दैट्स द डिफरेंस. वो जाता है, अपना खाना अरेंज करता है, घर आता है, बिल्ली के अंदर घुसता है, सो जाता है. एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवरसेल्फ, 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप सो, 8 घंटे जॉब करो, और बाकी के जितने बचे हुए टाइम है आप खुद के लिए निकालो. अगर आप नहीं निकाल रहे हो, देन यू आर अ कीड़ा, यू आर नॉट अ Wow. human being. So if you're doing something for your self satisfaction, be it cooking, singing, writing, or anything which makes you happy, satisfies yourself, then you are a human being. Otherwise there is no such difference between कीड़ा and a human. यार, आपने मुझे इतनी सही चीज बता दी है, और लोगों को भी इतनी सही चीज बता दी है. मतलब अगर ये इंडियन आइडल होता ना, मैं भी आपको नंबर 1 कर देता. मतलब भाड़ में गया कंपटीशन, ठीक है. मतलब आपने इतनी सही चीज बोली है. ये मैंने आई नेवर थॉट ऑफ दिस. 24 आवर्स में 8 घंटे मिनिमम सोना चाहिए. ओके, फॉर वेट लॉस ऑल्सो, फॉर हेल्थ, फॉर एवरीथिंग 8 hours. बाकी का 8 hours इज योर वर्क विद योर ऑफिस और वट एवर इट इज, राइट. और अभी भी 8 घंटे बचे हैं. 24 घंटे में 8 घंटे हम करते क्या है? अभी तो पता है पूजा, मैं सोच रहा हूँ यार, मैं करता क्या हूँ. मतलब, और 8 घंटे में क्या क्या नहीं कर सकता मैं. नहीं करते तो सभी है, बट अगेन हम लोग उसको वैल्यू के साथ नहीं करते हैं. Everyone is doing something or the other thing, but this is such a positive and inspirational thing for people who are housewives, who are professionals, who are business owners. यार, अगर तुम 8 घंटे काम और 8 घंटे सोने के अलावा भी अपना बाकी का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम प्रोडक्टिवली. That's what. उसमें से अगर 2 घंटा भी निकाल लो खाने का, पूजा, ये सब करने का, फिर भी तो 6 घंटे बच गए ना. जैसे मैंने बताया कि यू कैन राइट समथिंग, सिंगिंग प्रैक्टिस, व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, प्रैक्टिसिंग थिंग्स, सो दैट इवन प्रैक्टिसिंग इज नथिंग बट योर दैट सेटिस्फाइड यू कि ठीक है, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा. और चीजों को प्रैक्टिस विल ऑलवेज मेक यू परफेक्ट, इट विल नेवर हार्म यू. सो वो 1 घंटा देना अपनी प्रैक्टिस को, चाहे वो लिखना हो या कुकिंग करना हो, पेंटिंग करना हो. तो आई थिंक प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आपको डिफाइन करता है. Other than your professional, I'm talking about like people like me, जो कि they can't really go anywhere. जो 10 घंटे का जॉब है या 9 घंटे का जॉब है, उससे बाहर निकल के सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट इफ वी कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस फॉर व्हाट वी लाइक, एक टाइम पे आई एम श्योर कि आपका वैल्यू जरूर बढ़ता है. मेरे साथ इनफैक्ट ये भी हुआ है कि जॉब इंटरव्यूज में मुझे ड्रामे के डायलॉग्स भी बोलने पड़े. Wow. happened in past, जहाँ पे they were like, okay, I can see that you have been doing theater for a long time, तो आप डायलॉग बोल के सुनाओ. मतलब ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ दैट आई वाज हायर्ड, बट दैट हैज हैपेंड, जो कि नॉर्मली इंटरव्यूज में नहीं होता है. तुमको पता है ना, अभी पूजा, तुमने मुझसे कितना बड़ा पंगा ले लिया है. तुमने मेरे आइडिया दिमाग में डाल दिया कि अभी पूजा से एक डायलॉग बुलवाने का है. I can tell you the poem that was written by my dad. Ladies and gentlemen, I present to you Pooja Sagar. Thank you.
So this is about a character Ahalya. This was written by my dad Shivlal Sagar. It's in Hindi. Okay. वो अनुभव न आत्मलालसा की न किसी के बलात्कार का, उनका वो परिचित चेहरा नजर आया, रोज की तरह जैसे नजर आता है, गंभीर, उज्जवल। मैंने सिर्फ पूछा था, याद है मुझे, इतनी जल्दी आप लौट आए? एक अटपटा सा जवाब दे हाथ पांव धोने लगे। मेरा हाथ पकड़कर ले गए कुशैया पर। हुमादनी सजाती मैं जैसे, अविचल, कठोर, शांति में। मेरी आंखें बंद सी होने लगी, कमल की फूल की तरह। सूर्य को ढककर, सूर्य की स्मृति को मैं एक बिजली की तरह चमकने लगी बारंबार। सरोवर का पानी स्थिर होने से पहले, मैं अपनी प्रतिबिंब को देखने से पहले, प्रतिबिंब के साथ एकाकार होने से पहले, उन्होंने पुकारा था मेरा नाम लेकर। मालती लता का निचला हिस्सा मुरझाया देख एक नजर डाला तिरस्कार का। मैं कुछ समझ ही ना पाई, समझ ही ना सकी कि कौन सा पदचाप, कौन सा स्वर सच्चाई का है। मैं चुप खड़ी रही, मेरी आवाज लीन हो गई उसी पल, राख की तरह। उनकी गुस्से से भरी आंखें देख, वो आग, वो आग क्या मेरी ही अज्ञानता का चिराचरित पुरस्कार है? दक्षिण क्या सदा दक्षिण ही रहेगा और उत्तर हमेशा उत्तर? बरसने को आतुर मेघ का इंतजार में पड़े शीलाखंड का, बरसने को आतुर मेघ का इंतजार में पड़े शीलाखंड का। किसे पता है किस पांव के आघात से मैं फिर से जी उठूंगी। अशोक वृक्ष मगर वो नहीं होंगे, आश्रम खाली पड़ा होगा उनके निजस्व सच की तरह, शाप की तरह। Awesome! मैं थोड़ा सा ना अपना एक्टिंग कर रहा था जब आप बोल रहे थे ना, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसा एक्टिंग कर रहा था, तो ताकि लोग कुछ तो सुन रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, तो दोनों एंटरटेन हो जाएंगे. Okay, so this was But this was really awesome, man. I mean, your dad is such a great writer. मतलब मैं my Hindi is not so good. मतलब मैं इतने बड़े वर्ड समझ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता. मतलब बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा क्लाइंट के लिए, बट मैं समझ नहीं सकता इतने बड़े वर्ड. बट मुझे बहुत इतनी बात समझ में आ गई that your dad is a poet and a writer at heart, and I think आप में भी वो qualities हैं. सीख रही हूँ. Thank you, Ashish. No, this is so amazing. This is so amazing. You were meeting this group. So I just met one of the there was a wife and husband, so we went all to their places, and then that's how we interacted each other. So from that time, I would say that I have got fantastic team of people, wherein one person is HR, the other person is professor, the other person is in businessman. So this is a very nice a gang, and then we make sure that every quarter we are planning, we're traveling. So that's one of my hobbies, traveling and making small videos out of it with my experiences. I am not a professional one, not pro at it, but I still try to make it presentable so that people who are not able to visit, at least through my video, they can see the real at least view of the places. Other than that, what I like to do is I also do street plays, Nukkad Natak, if you have heard this term, right? Of course, So, yes. going to rural urban areas and then doing street plays for public awareness. So even I like doing that also. Wow. So these are other things for the professional puja. बाकी फोटोज एडिटिंग, वीडियोस एडिटिंग तो थोड़े थोड़े कर ही लेती हूँ मैं. जितना हो सके पापा के ड्रामा के लिए पोस्टर्स वगैरह कभी डिजाइन करना हुआ. These are not part of my job because I am totally into IT, but then I made myself polished in terms of the Photoshop, PageMaker, CorelDRAW, all those desktop publishing stuff. No. I did course long back, like way back during my graduation time. I already did it even before I entered this MNCs. Out of my own interest, I did it. So now I can understand that it was a good job actually with what I did in past. That's helping me out now. और मैं अभी ना लोगों को बताता हूँ पूजा कि ये जो 2021 का टाइम है ना, जब जो करंट हालात है उसके अंदर ना लोगों को कुछ चीजें जो है ना वो एसेंशियल स्किल बन गया है. इट्स नॉट अ लग्जरी डूड कि तुम्हें आता है या नहीं आता. अब तो ये है कि ये चीजें तो आनी ही आनी चाहिए. व्हाट स्किल्स एम आई टॉकिंग अबाउट? आई विल टेल यू एग्जैक्टली. One skill that you need to have is public speaking. Okay,
in order to talk to a group. One. Two is you should be well versed on social media. 2021 is not a time where you can afford to say something like, यार मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, या मैं लिंक्डइन पे नहीं हूँ, या मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ. नो, you have to be everywhere and you have to make your presence felt everywhere. Another skill is, basic photo and video editing and shooting skills. Basic. Matlab, everybody, and you don't have to be a YouTuber in order to know how to use your phone camera, or Right. in order to know basic things like a basic lighting setup, or like अगर वीडियो शूट करा है, 2 वीडियोस को अटैच करना है, उस पर टाइटल डालना है. ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती तो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल की डेट में you are your own marketing agency, you are your own advertising agency, you are your own HR, you are your own PR. सब कुछ खुद ही करना है अपने को, सो लिखने का स्किल, बोलने का स्किल, ऑडियो, वीडियो, सोशल नेटवर्क, these are basic things. You should know how to use Zoom, you should know how to use Skype. अगर आप और भी चीजें जानते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. And I'm talking besides profession. So you could be a teacher, you could be a housewife, you could be a office going person, you could be working, anywhere. But ये जो skills हैं, ये बहुत जरूरी हैं. आपको क्या लगता है, पूजा? What do you think? You are absolutely right. Whether you are a parent or you are a student, I think कि ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं. ये एज अ पेरेंट्स आपको भी सीखना है और आपको आपके बच्चे को भी सिखाना है, बिकॉज अभी तो रिमोटली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. तो एक तो टेक्नोलॉजी आपको वेल वर्स होना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो, आपको होना ही पड़ेगा. वो आपको प्रोएक्टिवली उसको सीखना ही पड़ेगा. So I think this is really important when you try to understand how to make the basic things like audio mixture या दो वीडियो को जोड़ना या टाइटल्स देना. I think ये कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा. And most important, the first thing what you said is public speaking. I said, that is something that's not only going to be useful for any videos or audio platform, but then वो normally भी आपको that वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को भी आपकी डेवलपमेंट करता है. तो that will even be useful for you to appear for interviews or stuff like that, meetings, and I think that is important any which ways. Yes, and मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कि these days आजकल लोगों का थोड़ा सा एटीट्यूड क्या हो गया ना, कि वो अपना कंटेंट तो डाल देते हैं, अपना पोस्ट तो डाल देते हैं, अपना फोटो तो डाल देते हैं, बट वो किसी और का ना मतलब लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये सब नहीं करते. उससे क्या होता है कि पीपल इन योर फ्रेंड सर्कल ना गेट अ फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी. मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यू हैव टू गो एंड स्टॉक एवरीबडी ऑन योर फेसबुक और इंस्टाग्राम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू फील स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, or if something touches you or moves you, take a little bit of effort to leave a comment or try to connect with that person or talk to him or leave something like, dude, I like this what you're doing, मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती पर आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, something like encouragement or something. Because होता क्या है ना, जैसे आपका नाम है पूजा सागर, so सागर का क्या है, it has to flow. So when you give love to people, you will get it back, right? अब जैसे पूजा सागर सॉ माई पोस्ट और सम मे बी अनदर शो और समथिंग, या जो मैंने कुछ वीडियो वगैरह बनाया होगा, उसको लगा होगा यार दिस गाइज एक्चुअली एंथुसियास्टिक, ही रियली इज डूइंग इट, ही इज नॉट बुलशिटिंग एनीवन या ही इज नॉट ट्राइंग टू फूल एनीवन, समथिंग जेन्युइन इज देयर, राइट? सो उस जेन्युइन चीज से आप कनेक्ट हुए. अब नाउ आई सी पीपल कंप्लेनिंग कि यार मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता यार फेसबुक पे, मेरा तो कोई लाइक नो प्रोफेशनल लीड और एनीथिंग इज कमिंग, एंड आई मतलब सोशल मीडिया तो ठीक है बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. सो यू सी यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू ट्राई टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. तो मैं बस यही बोलती हूँ ना कि यू नेवर वेट फॉर एनीवन टू गिव यू अ स्टेज और अ प्लेटफॉर्म, यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ, स्टेज फॉर योरसेल्फ, एंड देन वो मैं कहती हूँ डू द डैमेज, रिपेयर एंड रिपीट. सो दैट्स आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. यू शुड गो and then do it. Whether it will go right, wrong, let's not think about it. Just go and do it. दो ही चीजें होंगी, या तो बहुत अच्छी होंगी या तो बहुत बुरी होंगी. अच्छी हुई आपके लिए अच्छा है, नहीं हुई you repair it. You again start working on the same and you repeat the whole thing again. Like you keep on trying. Absolutely. And मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, they want but they don't want to give. They want to get but they don't want to give. तो जैसे ना पूजा, जैसे हर एक का ना एक फ्रेंड होता है
जिससे ना लोग गुस्सा होते हैं, यार वो बंदा तो मुझे कभी फोन नहीं करता, वो तो मुझे कभी याद ही नहीं करता, वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त है, यू नो दैट गर्ल और दैट बॉय इज लाइक टू बिजी इन हर लाइफ. यार ठीक है, दे आर बिजी, बट हैव यू taken the effort to get in touch? Maybe that person is not feeling good or they're going through something in life that they are not comfortable sharing with you. So Right. ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम लाइफ में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा पाल लेते हैं और उसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक पहाड़ हो जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एंड देन वी थिंक दैट यू नो वी और फिर वो स्टार्ट ब्लेमिंग. वो आ जाता है कि बंदे में एटीट्यूड हो गया है या वो एरोगेंस आ गया है कि यू नो हम क्यों कॉल पहले करें. आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग वी आर फेसिंग अभी दीज डेज, स्पेशली पुराने दोस्तों के साथ तो ये नॉर्मली होता ही है. जब आप दूर हो जाते हो जॉब के चक्कर में या शादी हो जाती है तो यू डोंट रियली टेंड टू टॉक टू देम सो मच. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा एफर्ट डाल के इफ प्रोएक्टिवली वी आर जस्ट कॉलिंग देम अप एंड देन हाय डूड हाउ आर यू डूइंग, आई थिंक वो एक खत्म कर देता है ना, जो दरार होता है ना वो खत्म हो जाता है एकदम से. बिल्कुल. एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर सो इम्पोर्टेंट यार. मतलब पूजा, यू नो अभी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं आपसे पहली बात कर रहा हूँ. मुझे तो लग रहा है हम पता नहीं क्या, मतलब यू नो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं. राइट. So so this is the thing that you know this is a time when it's very very important to be friendly with people. If somebody is not feeling well, it's very important to pick up a call when you get it, you know. So this is my message and this is what I'd like to say. And Pooja, is there anything else that you would like to tell? Because अभी ऐसा लग रहा है ना कि तुम और मैं सिर्फ बैठे हैं अकेले कमरे में, but approximately like some 7 to 10 million people are watching us right now. Right. मतलब पता नहीं कितने स्टेडियम भर के लोग देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगी? तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगी और ज्यादा प्रे करूंगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपने आप को कीप सैनिटाइज्ड योरसेल्फ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट टेक द सेकंड वेव वेरी लाइटली. आप न्यूज चैनल्स में तो देख ही रहे हैं. और दूसरी बात बस यही कि अगर आप देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, नॉट फ्रॉम मी बट देन फ्रॉम आशीष, आई वुड से ही इज अ फैंटास्टिक गाय. आई हैव कम अक्रॉस सिंस the lockdown started. I think he's the first person, the fantastic one I have met online. So if you're getting inspired, yeah, do approach him if you really want to share your thoughts with him, or at least if you like the show, just drop him a message that if you really like the show, because I think that's how he will be boosted and we all will be happy to see your responses. बस ख्याल रखिए अपना और वैक्सीन ले लीजिएगा जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हो. Absolutely. And if you know somebody is watching this and you know they want to contact Pooja Sagar or they want to get in touch with you, so are there any website or link या ऐसा social media का कुछ आप बताना चाहेंगे where people can connect with you? Sure. So छोटा सा YouTube चैनल है मेरा, पूजा की पाठशाला, और वहाँ पे आई पोस्ट some inspirational videos, some funny videos, so that depends. तो जो भी created videos है वो मेरे अपने लिखे हुए contents है. और मैं Instagram पे भी available हूँ, ruling_goddess. That's how you can get in touch with me if you really like. So Absolutely. And it was so nice talking to you, Pooja. पता ही नहीं चला 56 minutes हो गए हमको बात करते हुए. ऐसा लग रहा है अभी अभी तो बात स्टार्ट हुई थी और इतनी जल्दी कैसे 56 minutes पास हो गए. Thank you so much. You're a beautiful person. You're a wonderful girl. You know, you're a very talented person and you're a very hard-working person. मैं चाहता हूँ कि आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें हों. You know, God protect your health, your career, you know, your family, especially in this difficult time. और फटाफट से यार ये ख़त्म हो जाएगा. अभी वैक्सीन स्टार्ट हो गई हैं. फटाफट सबको लग जाएंगी. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. आई थिंक नेक्स्ट न्यू ईयर जो होगा उसमें हम फिर से बात करेंगे. And you know, in the next season or whenever we talk next, मैं और कहानियां सुनना चाहूंगा तुमसे और मैं और जानना चाहूंगा कि पूजा ने क्या क्या सागर में गागर किया. Sure. Thank you very much, and I'm seriously telling you, it was fantastic to being on your show, and thank you very much. And yeah, thank you so much for at least responding. I think the response seeing from you was a surprise for me. So thank you very much for making me a part of this. Thank you so much, Pooja. And this is most definitely one of the most memorable, interviews that I've had, because आपने already इतनी अच्छी चीजें बता दी कि मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा. I just had to agree with you. Thank you so much, Pooja. You have a lovely evening. Enjoy yourself.
and thank you for being on the Ashish David Show. Bye bye. Goodbye. Take care. You too.